Now children, let's start with chapter number 3, motion of the earth. In this chapter, we will study about the motion of the earth. Earth do two types of motion, rotation and revolution. In rotation, it takes 24 hours to complete one rotation, and there are the changes in day and night. And if we talk about revolution, it takes 365 days, 365 1 by 4 days to complete one revolution. And there are changes in the season. And then I will tell you the effects of inclination of earth axis. Then what are the changes of the season causes revolution, adaptation of animals to different climate. How different animals adapt to the different climate. Like we see in the polar region, you can see that the polar bear live there because they can survive in that colder climate. Now, let's start the chapter. What do you understand by this phenomena? Does it apply to your everyday life? Every day we notice that sun rises in the east and sets in the west. And we are always conscious of apparent movement of the sun, but very little realizes that earth on which we live is constantly in motion. आप देख रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है वो constantly मोशन में रहते हैं, लेकिन हम उसको ज़्यादा फील नहीं कर पाते हैं. राइट, सन कहाँ से राइज करता है, ईस्टर कहाँ सेट करता है, आपके वेस्ट में. When the sun disappears, we say the sun sets, and while it emerges, we say sun rises. We are not at least aware that sun is actual does not rise or fall. देखो, हमें ऐसे लगता है कि जब हाँ सन आ रहा है तो वो राइज कर रहा है, और जब वो सेट कर रहा है, फिर जो नाइट हो रही है वो सेट कर रहा है, मतलब वो ढल रहा है. बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. And sun is the stationary and earth is moving constantly. We have studied in the previous chapter also that the earth is a planet which moves around the sun. देखो, अर्थ मूव कर रहा है, सन तो एक कांस्टेंट प्लेस पे अपनी ही जगह पे, और अर्थ क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मूव कर. ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया. To understand this concept, we can take an example. Suppose you are traveling by a train. While seeing outside, you will observe that things and features outside the train. आप ट्रेन से जा रहे हैं, फिर कार से जा रहे हैं, आप देखते हैं कि जो साइड में जो आपके ट्रीज वगैरह था वो आपका लगता है कि वो मूव कर रहे हैं. ठीक है, वो भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. बट इन रियलिटी ये जो फीचर्स है, दे थिंग्स आउटसाइड ऑफ द ट्रेन दे आर स्टैटिक व्हाइल द ट्रेन इज मूविंग. इन सिमिलरली वे जो अर्थ है वो मूव कर रहा है, और जो आपका सन क्या है वो स्टैटिक है, मतलब वो वहीं पे रुका हुआ, वो स्टेशनरी है. देखो, अर्थ क्या है, हमारा वन ऑफ द प्लैनेट है, एक प्लैनेट में से एक प्लैनेट हमारा अर्थ है. वो ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे हम रहते हैं, where life is possible, and we all are living on the earth only. Earth do two types of motion. One is rotation and another is revolution. If we talk about rotation, I have told you it takes 24 hours to complete its one full rotation, and it takes 365 days to complete its revolution. And by the revolution there are changes in the season, and in rotation there are changes in the day and night. Now the earth axis is an imaginary line through the geographic center of the earth about which it spins. The axis is tilted. जो आपके axis है वो tilted है at the angle of 23.5 from the vertical to orbital plane, and the axis of the earth makes angle of, और जो axis है आपकी earth की वो कितने का angle बनाते हैं, 66.5 का on the plane of earth orbit. और ये जो tilting of the axis इसको क्या कहा जाता है, inclination of the earth's axis. इसको क्या बोला जाता है, inclination of earth axis. Next is rotation. What is rotation? The daily movement of the earth on its axis from west to east. जो daily movement अर्थ कर रहा है west से east की तरफ, किधर से करता है, west से east करता है, उसको क्या बोला जाता है, rotation of the earth. It spins. The spinning to a top, it takes about 24 hours to complete one rotation, and the period of rotation is known as earth day. कितना टाइम लेता है, 24 hours लेता है, और एक जो पूरा होता है रोटेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, अर्थ डेज. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी line joining the north to south pole. The axis is tilted at the angle of 66.5 of the plane, and the tilt is in the same direction and the same angle. जो tilt होगा वो same ही direction में होता है और same ही angle में होता है. Right? Now this means that the earth moves from west to east, so sun appears to be moving. तो अर्थ जो है वो कैसे मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट. तो आपको सन कैसा मूव करता है दिखाई देता है, ईस्ट टू वेस्ट, अपोजिट होता है. नाउ रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. जो रोटेशन है अर्थ का वो डे और नाइट कॉज करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू एन एक्टिविटी. पुट अ ग्लोब इन अ डार्क रूम. आप एक ग्लोब लियो तो डार्क रूम में रखो,
and in front of torch light. Dark room react, torch light लेनी है आपको, and half of the globe facing torch is lit up. The other half in darkness. Rotate the globe and you will find gradually the part that was in darkness वो फिर lighted part में चला जाता है. यही क्या होता है? रोटेशन. यही क्या वे है कि आपके क्या होती है? डे और नाइट होती है. Now similarly when Earth rotate on its axis, one of the half is. देखो अब अर्थ क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है. तो जो पार्ट उसका सन फेस करेगा वहाँ डे होगा और जो पार्ट फेस नहीं करेगा सन को वो नाइट होगा. दिस इज हाउ डे एंड नाइट आर फॉर्म. When the sun is directly overhead at any point of the earth's surface, the time of that is 12 noon. देखो जब क्या होगा डायरेक्टली सन की रेस पड़ रही होंगी तो वो आपके क्या होगी 12 noon. देखो ना बहुत तेज धूप होती है 12 बजे करीब. And after 12 noon when the same area has moved eastward, it is said to be afternoon. हम कहते हैं ना afternoon. After 12 o'clock, what we say afternoon. And brief period of diffuse light between sunset and complete darkness is called dusk. देखा एक क्या होता है सनसेट के बीच वाला और पूरी कंप्लीट डार्कनेस के बीच वाला टाइम क्या होता है? वो डस्क होता है. आपको वो याद रखना है. And the time before noon is morning and the brief period is diffuse light between सनसेट एंड फुल सनराइज और फुल डे के बीच का जो टाइम होता है वो क्या होता है? आपका डॉन का टाइम होता है. The sun rays are slanting in the morning and evening. Slanting rays spread over a long area and give less heat per unit area. देखो जो सन रेज होती है वो मॉर्निंग में थोड़ी स्लैंटिंग पड़ती है, ठीक है, टेढ़ी पड़ती है एज कम्पेयर टू इवनिंग. मतलब मॉर्निंग और इवनिंग में आप देखेंगे कि जो सन रेज होती है वो स्लैंटिंग पड़ती है, ठीक है, और एक वो लॉन्गर एरिया को कवर करती है. एंड द सन रेज आर वर्टिकल. और जो सन रेज होती हैं वो वर्टिकल होती है कब? नून में. इट इज वर्टिकल इन नून. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन? What are the different effects of rotation? First is east-west movement. Since the earth rotates from west to east और आपको सन राइज करता है ईस्ट में और सेट का करता है वेस्ट में, तो वो ईस्ट से वेस्ट चलता है और अर्थ आपका वेस्ट से ईस्ट मूव करता है. Then next is circulation of air and water. देखो अर्थ causes changes, वो कंसिस्टेंट चेंजेस करता है, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा जो फ्लो ऑफ विंड है, ओशन वाटर है, उसमें भी क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं. देन वेरिएशन इन टेम्परेचर. वेरिएशन जो होता है टेम्परेचर में वो भी आपका किसकी वजह से होता है? रोटेशन की वजह से होता है. क्योंकि जो पार्ट क्या रिसीव करता है? जो पार्ट डायरेक्ट सनरेज रिसीव करता है वो ज़्यादा गर्मी होती है और जहाँ पे स्लैंटिंग होती है वहाँ थोड़ा ठंडा होता है. नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ इंक्लिनेशन ऑन द अर्थ सर्फेस ऑफ द अर्थ एक्सिस. नाउ इफेक्ट्स ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस. As a result, the inclination tilt of the earth axis, the circle of illumination and circle dividing the lighted part of the earth from the dark half. जो dark half से circle के lighted part भी divide करता है उसको क्या बोला जाता है? Circle of illumination. Illumination मतलब lighted part जो होता है. यहाँ पे जो length of days and nights है वो equal होती है. जो डे और नाइट की जो लेंथ होती है थ्रू आउट द ईयर वो इक्वल रहती है इस जगह पे. एंड जो एक्सेस वुड बी हैव बीन वर्टिकल टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट. जो सन रेज हैं दे वुड फॉल इन द सेम मैन, ठीक है. हमेशा जो सन की रेज है वो आपकी वर्टिकल ही पड़ेगी. नाउ द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट वुड हैव बी इक्वल थ्रू आउट द ईयर बट एट द इक्वेटर दे आर ऑफ सेम डायरेक्शन एज सन रेज फॉल्स ऑलवेज वर्टिकल. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही है, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ये डार्क पार्ट है, ये नाइट वाला और ये डे वाला. यहाँ सन सेट हुआ है, यहाँ सन राइज हुआ. मून लाइट है यहाँ पे, राइट. सो देयर आर मोर आवर्स इन सनलाइट. देखो समर में क्या होता है? ज़्यादा डे होता है, सनलाइट वाला पार्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नाइट. तो दीज पोल्स अल्टरनेटली हैव कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर 6 months फॉलोड बाय डार्कनेस ऑफ 6 months. डार्कनेस भी 6 months की और लाइटेड पार्ट भी 6 months का होता है. Now this experiment is given to you. Now do the experiment. You have to take a globe. I have told you before also. First step is take a torch and a globe. Place the globe on this table and put light on the. आपको डार्क रूम पे रखना है. एक टॉर्च लेनी है, फिर आप स्विच ऑफ करोगे, बंद कर दोगे लाइट रूम की. Then mark 4 circles at different places on the globe with the help of marker in front of the torch. Now you will see that only torch facing part of the globe. देखो जो इस पार्ट को फेस कर रही है
ठीक है, उसी पोर्शन में आप देखेंगे लाइट है और अपोजिट पोर्शन में लाइट नहीं है, मतलब बी वाले में लाइट नहीं है. Now in a given figure, torch represent the sun and the globe represent our earth. The four circle prefer A, B, C, D situated at different places on the earth. आपको ध्यान से देखना है, मैंने आपको दिखाया भी था. Because of the earth rotates from west to east, city D experience sunrise और city C experiences your sunset. And if you rotate the globe from west to east, आप ऑब्जर्व करोगे कि जो डिफरेंट प्लेसेस हैं वो डिफरेंट तरीके से क्या व्यू करेगी, डे एंड नाइट को. Then we have next topic, that is revolution. So the movement of the earth around the sun is called revolution. जो movement होती है अर्थ की around the sun is called revolution. And how much time does it take? It takes 361 by 4 days to complete one revolution. And there are changes in the season. So the extra days is added to the month of February. Every month, year has 366 days. और उस ईयर को जिससे 366 days होते हैं उस ईयर को क्या बोला जाता है, लीप ईयर. And the earth revolve around the sun in an elliptical orbit at speed of 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड. और आपका 1 लाख किलोमीटर जाता है 1 आवर में. While revolving around the sun, जो आपका अर्थ एक्सिस है वो इंक्लाइंड है वन साइड के. ड्यू टू दिस इंक्लिनेशन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो क्या फेस करता है, सन ड्यूरिंग द सम पीरियड ऑफ द ईयर. Then we have elliptical orbit of the earth. The earth moves around the sun in an elliptical or elongated orbit called elliptic. Elliptical orbit means an orbit the shape of which is an ellipse. An ellipse is not a complete circle. जो eclipse होता है वो अपने आप में एक complete circle नहीं होता. So we take a pencil or 2 pin and you will top pin and loop the thread. Fix the pins on the paper but the loop so that it encloses 2 pins inside the loops. Now what you will do, you will hold the pencil and draw the line keeping the thread tight and moving pencil along it. So as we now here having 366 days in leap year, the surplus day is added to the month of February. और जो surplus day है उसको आप कहाँ ऐड कर देते हैं, month of February में. तो कितने हो जाते हैं, 29 days हो जाते हैं. What are the different effects of earth revolution? पहला क्या है कि जो आपके days और night होते हैं वो unequal होते हैं. So the axis of the earth is tilted at the angle of 66.5 one side direction and northern hemisphere remains inclined towards the sun during 6 months every year. और ये जो large part होता है आपका northern hemisphere faces sun during the period and lighted for a longer period. Every point this part of the earth remain lighted for a longer period. देखो जो आपका northern hemisphere वाला part होता है क्योंकि sun की रेस क्या पड़ रही है, डायरेक्टली पड़ रही है, तो वो ज्यादा टाइम तक, ये वाला जो पार्ट होता है वो ज्यादा टाइम तक क्या होता है, लाइटेड होता है. राइट, ज्यादा टाइम तक क्या होता है, लाइटेड होता है, मतलब डे ज्यादा होता है. जब अवे होता है, सन से दूर होता है, जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, ये क्या होता है, शॉर्टर होता है, छोटा होता है. नाउ इफ यू ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द नॉर्थ पोल, यू विल फाइंड द सर्कल विल ऑलवेज बी इन सनलाइट. जो भी आप सर्कल ड्रॉ करोगे आप देखेंगे कि वो हमेशा सनलाइट की तरह होगा. ठीक है. And the North Pole will have no light, but it will have 24 hours days. At the same time, South Pole will have 24 hours day and no night. देखो उल्टा होता है, साउथ पोल में 24 आवर्स का डे रहेगा लेकिन कोई नाइट नहीं होगी. वहीं अगर हम बात करें नॉर्थ पोल में कोई डे नहीं होगा, 24 आवर्स की कोई नाइट नहीं होगी और 24 आवर्स का क्या होगा, डे होगा. नाउ चेंज ऑफ सीजन. आप देखते हैं कि वी एक्सपीरियंस 5 सीजन. In India, basically, we have 3 seasons: summer, winter, or rainy season. So, changes in season. Now, first is summer solstice. 21st June, northern hemisphere जो tilted है towards the sun, और जो rays of sun होती है वो डायरेक्टली और वर्टिकली कहाँ फॉल होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में. कहाँ फॉल होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. एंड दीज एरिया रिसीव मोर हीट. ये एरिया जो है ज़्यादा हीट मिलती है इन्हें. और जो एरिया होता है नियर द पोल वहाँ पे लेस हीट होती है. वाई,
क्योंकि जो सनरेज होती है वो कैसी होती है, स्लैंटिंग पड़ती है हमारी नॉर्थ पोल पे। देखो जैसा अभी ये मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये आपके पोल्स हो गए, यहाँ पे आपका सन हो गया, तो रेज देखो थोड़ी स्लैंटिंग पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे क्या होती है, हीट कम जा पाती है। As the North Pole is inclined towards the sun, the region from the north to the Arctic Circle is under continuous sunlight. देखो जो रीजन है नॉर्थ पोल से आर्टिक सर्कल के बीच में, वो हमेशा क्या रहता है, अंडर द सनलाइट रहता है 24 आवर्स तक। लाइक नॉर्वे और स्वीडन, आपको याद रखा ये दो कंट्री है वेयर द फिनोमिना ऑफ मिडनाइट सन इज सीन। आपको अगर देखेंगे जो मिडनाइट सन वाला जो रीजन है या कंट्रीज है वो कौन सी है आपकी, दे आर नॉर्वे एंड स्वीडन। द रीजन एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर 6 months, यहाँ पे पूरे 6 महीने के लिए क्या रहते हैं, दिन रहता है, ठीक है। सिंस लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन इन द समर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जो पोजीशन होती है अर्थ की वो क्या होती है आपकी, समर सोलेस्टिस। ये लॉन्गेस्ट डे होता है, इस दिन शॉर्टेस्ट नाइट होती है, और ये कौन सा टाइम होता है, 21 जून का। नेक्स्ट इज विंटर सोलेस्टिक, जहाँ पे क्या होता है, लॉन्गेस्ट नाइट होती है और शॉर्टेस्ट डे होता है, और ये कब होता है आपका, ये आपको देखना है, ये कब होता है आपका। नाउ एट दिस टाइम ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर, साउथ पोल इज अवे फ्रॉम द सन। साउथ पोल क्या होता है, अवे होता है सन से, और वो टोटल डार्कनेस होती है वहाँ पे, उसको आप विंटर सोलास्टिक कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। और जो पोजीशन ऑफ द सन होती है विंटर सोलास्टिक में सदर्न हेमिस्फीयर में, शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में कब, 21 जून। द रीजन फ्रॉम द साउथ पोल टू द एंटार्क्टिक सर्कल, ये क्या होता है, डार्कनेस में रहता है 24 आवर्स के लिए। फिर है आपका a large portion of southern hemisphere gets light, and in the summer in the southern hemisphere with longer day and shorter night, reverse happen in the northern hemisphere. northern hemisphere में winter solstice होती है, मतलब आपका जो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डे होता है, लॉन्गेस्ट नाइट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ये कब होता है, 22 दिसंबर को। नाउ लेट्स सी इन दिस डायग्राफ, देखो सन रेज क्या हो रही है यहाँ पे, डायरेक्टली बढ़ रही है, राइट। तो यहाँ पे समर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और यहाँ विंटर है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे क्या होगा आपका समर सोलास्टिक 21 जून को, और यहाँ पे विंटर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और समर है सदर्न हेमिस्फीयर में, कब होगा ये आपका 22 दिसंबर को, और ये क्या होगा, विंटर सोलास्टिक। अब यहाँ पे बात करें कि सनरेज डायरेक्टली पड़ रही है, इक्विनॉक्स का पीरियड है 21 सितंबर, क्या होगा, स्प्रिंग होगा सदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा ऑटम। अब यहाँ पे हम उल्टा देखेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा स्प्रिंग और सदर्न हेमिस्फीयर में होगा आपका ऑटम, और ये भी इक्विनॉक्स का टाइम होगा कब, 21 मार्च। देन वी हैव इक्विनॉक्स 21 मार्च एंड 23 सितंबर, direct rays of sun falls on the equator, and at this position neither poles is tilted towards the sun, whole earth experience equal day and equal night. इसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। दो तरीके के हमारे इक्विनॉक्सेस होते हैं, ऑटोनॉमिनल और आपके स्प्रिंग, जिसे हम वर्नल इक्विनॉक्स भी कहते हैं। First of all, I will tell you the position on 21st March. The Earth moves forwards on 21st March. North Pole and South Pole, they are neither inclined toward the sun or they are not away from the sun. The equator comes again to face the sun, which is directly over. Days and nights are equal. जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज और नाइट इक्वल होती है, उसको हम वर्नल या वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। All places on the earth have 12 hours day, 12 hours night as the circle of illumination passes through the poles, और ये अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 12 घंटे के दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। फिर है पोजीशन ऑन 23rd September. It is an autumn in the northern hemisphere and what it is called autumn equinox. अगर हम बात करेंगे सदर्न हेमिस्फीयर की, इन सदर्न हेमिस्फीयर सीजन्स आर अपोजिट टू द सीजन। सीजन्स क्या है, अपोजिट होता है सीजन के नॉर्दर्न। अगर आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम है तो सदर्न में स्प्रिंग होगा, ठीक है। सदर्न में ऑटम है तो नॉर्दर्न में स्प्रिंग होगा। एंड दस द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ और इट्स सिल्टिक एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट, और वो डिफरेंट ड्यूरेशन की होती है, और सीजन्स भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं डे बाय डे। Now, adaptation of animals to different
climates. The climate of the place influences vegetation, animal life, crop, वहाँ का food कैसा है, clothing क्या है, occupation क्या है. People and animal adapt to climate condition in different way. This is how people and animal is different. आपने देखा होगा अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग जगह के animals different होते हैं. So animals like polar bear, reindeer, dogs living in cold climate generally have thick fur. आपने देखा होगा पोलर बेयर, उसके थिक फर होते हैं क्योंकि वो कोल्ड क्लाइमेट में रहता है. उसको ठंड से बचने के लिए उसके जो फर होते हैं वो बहुत थिक होते हैं और एक उनके फैट होता है बिलो द फेदरी कवरिंग एंड दिस कीप्स देयर बॉडी वार्म. एंड व्हेन देयर इज विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो बर्ड है वो कहाँ माइग्रेट करके चली जाती है, सदर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है, जिससे वो अनफेवरेबल जो कोल्ड कंडीशन है या वेदर कंडीशंस हैं उससे बचने के लिए वो सदर्न हेमिस्फीयर में चली जाती है और वापस वो अपने, जब विंटर आता है तो वापस, जब विंटर खत्म हो जाता है वापस अपने वही उसी जगह पे आ जाते हैं. तो इन बर्ड्स को क्या बोला जाता है, माइग्रेटरी बर्ड्स. सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, स्नेक्स, स्नेल्स, बैट्स गो इन अ स्टेट ऑफ डोरमेंसी, मतलब इनएक्टिविटी के चले जाते हैं क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन या समर हीट की वजह से. एंड दे ब्रीथ स्लोली एंड देयर हार्ट ऑल्सो बीट स्लोली. ड्यूरिंग द विंटर दे गेट एनर्जी फ्रॉम द फैट स्टोर्ड इन देयर बॉडी. ठीक है, जो उन्होंने विंटर से पहले अपनी बॉडी के अंदर फैट स्टोर करते हैं उससे वो एनर्जी लेते हैं. एंड दे गेट अप फ्रॉम द स्लीप इन विंटर और समर. These are the terms to know. You may do yourself. You must read them one time. Now we have completed this chapter. Hope you understood what is rotation, what is revolution, what are the different equinox. I have told you about summer solstice, winter solstice. ठीक है, autumn equinox, spring equinox, and then I have told you about the climatic effects on the animals. Now let's start with the exercise of the chapter. Now on first is tick the correct option. On which period does sun rays fall vertically over Tropic of Cancer? कब पड़ती है आपकी? Your summer solstice. Direct rays of the sun fall on the equator on 21st March. Christmas is celebrated in summer. In summer में कहाँ celebrate करा जाता है? In Britain. Cycle of season is caused due to revolution. The movement of the earth around the sun is known as, जो movement होती है अर्थ की around the sun, उसको क्या बोला जाता है? रोटेशन. The autumnal equinox. The autumnal equinox happens on, autumnal equinox कब होता है? 21st March और on 23rd September. 23rd September. Now next topic is fill in the blanks. First is the revolution and tilted axis of the earth causes season. The tilt of the earth's axis is in the dash direction and the dash angle throughout the year. The sun rays falls vertically on the Tropic of Dash on 22 December. Tropic of किस पे पहुंचती है? Capricorn. The earth moves around the sun in dash orbit, elliptical orbit. The daily motion of the earth is rotation. Now, a leap year has number of days. कितने होते हैं? 366. Next is write T for true and F for false statement. First is the circle of illumination is from pole to pole. True. The axis of the earth is treated as the angle of 66.5 to its optical view. It's true. On 22 December, it is summer
सोलास्टिक इन सर्दर्न हेमिस्फेयर. इट्स ट्रू. सर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता, नहीं, यस, ट्रू, क्योंकि नॉर्दर्न, हम नॉर्थ में रह रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, 22 दिसंबर को विंटर सोलास्टिक होता है. द डायरेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन इज फ्रॉम, डायरेक्शन जो होती है रेवोल्यूशन की वो क्या होती है, ईस्ट टू वेस्ट होती है या फिर वेस्ट टू ईस्ट होती है. आपकी सन की ईस्ट टू वेस्ट होती है और अर्थ की क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है. सो फॉल्स. The earth revolves around the sun in 365 days and 8 hours. The sun shines vertically over equator on 21st June. False. Vertically नहीं करता. Now inclination match the following. Inclination of the earth's axis, that is 66.5. Revolution of the earth, season. Rotation of the earth, days. Winter solastic, 22 December. And the earth axis inclined on the plane rotation at year. Right? Now next is answer the following question. Explain adaptation of animal. डिफरेंट एनिमल, जैसे मैंने आपको आप बता सकते हो कि पोलर बियर हो गए, डॉग्स हो गए, इनकी बॉडी पे थिक कवरिंग होती है, ठीक है, फर की, जिससे वो उनको प्रोटेक्ट करता है कोल्ड क्लाइमेट से. ऐसे आप दे सकते हैं एग्जांपल बर्ड्स का, जैसे मैंने आपको बताया था माइग्रेटरी बर्ड्स क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं फेवरेबल क्लाइमेट से बचने के लिए, एक्सट्रीम क्लाइमेट से बचने के लिए दूसरे रीजन में, और वापस जब विंटर कंप्लीट हो जाता है तो अपने वापस आ जाती है. राइट, लाइक दिस यू कैन गिव 2 to 3 एग्जाम्पल, यू कैन एक्सप्लेन दैट. एक्सप्लेन विंटर सोलास्टिक. विंटर सोलास्टिक क्या होता है आपको एक्सप्लेन करना है. 22 दिसंबर को, ठीक है, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ ठंड पड़ती है. वाई डज सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोलास्टिक इन डिफरेंट टाइम्स दैट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. आप उस डायग्राम मैंने आपको शो करा था, वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन. भाई चेंजेस होता है सीजन में, राइट, टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है. लाइक दिस 2 to 3 पॉइंट्स यू कैन राइट ओवर हियर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 2 kinds ऑफ मूवमेंट. रोटेशन और रेवोल्यूशन, क्या आप समझे हो. रोटेशन 24 आवर्स लेता है, चेंजेस इन डे एंड नाइट होती है. रेवोल्यूशन 365 1/4 डेज लेता है, चेंजेस इन सीजन होते हैं. लाइक दिस यू कैन राइट द डिफरेंट पॉइंट. How are days and night caused? Due to rotation. You can explain the word rotation. When is the spring season caused in the southern hemisphere? कब होता है spring season? That is 23 September. Sorry, it's southern hemisphere. Northern hemisphere में होता है 21st March को होता है. What happens on the autumnal equinox? तो sun की rays directly equator पे होती है, right? How is summer caused in northern hemisphere? Then why do the pole experience about 6 days? क्योंकि जो sun की जो rays होती है वो vertical पड़ती है. What is Earth Day? You have to explain the Earth. Now we have done this with chapter. Now we have completed the exercise. Hope you understood. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.